Okay. So good evening, cadets. So previous period we have seen what is the kinetic interpretation of the temperature. How can we say that the temperature is the average kinetic energy, or it is the average kinetic energy of the gas molecules, right? So now this period we are going to discuss very important topic of this kinetic theory of gas. Heart of this topic, that is degrees of freedom. Means suppose the gas molecule, we know that according to assumption of gas molecule is always in its random state of motion. Means it is free to move in all possible direction with all possible velocities. So we have to somewhere specify its position inside the cylinder. Means what type of coordinate system is required, how many directions are required, how many coordinates are required if it is moving in 3D space, because inside the cylinder we get 3D space. So how many ideal coordinates are required to specify that particular system, that we are going to see. So write down the name of topic, degrees of freedom in kinetic theory of gas. Okay. So degrees of freedom we are going to discuss. So first of all, try to understand what exactly the meaning of degrees of freedom. Okay, so just imagine that this is a cylinder which contains large number of molecules are enclosed inside it, and which is fitted with weightless and movable piston, okay, of area A. Now just imagine whichever gas is fitted inside the cylinder, okay, which has certain value of pressure P, temperature T, and volume V, okay, and it has n number of moles enclosed in the cylinder, right? Now suppose if you take any molecule inside the cylinder, suppose this is the one molecule, or this gas, just imagine that gas is the monoatomic gas, it has only one molecule, right? Now this one molecule can move in all possible direction with all possible velocities as it is in the random motion. So as students, it is able to move along x-axis also, it is able to move along y-axis also, or it can move along z-axis also. Means in order to specify its position, I repeat, in order to specify its position, we may require the 3 dimensions x, y, and z. Are you getting my point? So basically in physics, we have 3 types of degrees of motion. First, translational degrees of freedom. Second, rotational degrees of freedom. And third one is vibrational degrees of freedom. DOF means degrees of freedom, right? So vibrational degrees of freedom rarely we consider, and it is mostly applicable for polyatomic gas only if the molecules are more than 2. Okay, for diatomic and monoatomic gas we used to consider only translational and rotational degrees of freedom. So first of all, try to understand what exactly the definition of degrees of freedom. So what is degrees of freedom? Listen it very carefully. It is the number of coordinate required. I repeat, number of coordinates required to specify the position of the system completely. I repeat, it is the number of coordinates required to specify the position of the system. Suppose it has only one molecule. So how we are going to specify its position? It is like we may say it may transmit, it may translate, it may travel linearly around x-axis, towards y-axis, towards z-axis. Means if only one molecule is there, it may travel all possible directions, that is all 3 directions. So it has 3 translational degrees of freedom. But single molecule cannot rotate, because rotate hone ke liye at least it should have the bonding with another molecule, like dumbbell shape. Then only it may rotate along y-axis, it may rotate along x-axis like this, it rotate hoga. Okay, so in order to understand it clearly, because this is a like critical point, and unless and until we see some video or animated things, you're not going to understand it. Okay, so just I'll
express, or just I'll share one video to you all so that you can understand what exactly the degrees of freedom and how many types exactly we are going to discuss in this topic. What is translational degrees of freedom, what is rotational degrees of freedom, and what is vibrational degrees of freedom. And then all three types basically we are going to discuss along with for monoatomic gas, diatomic gas, and polyatomic gas. Okay, so just see, now I am sharing one more screen. Okay, is it visible to you all? Is screen visible to you all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Just give me 1 second. 1 second, I'll share because I forgot to share the audio. About kinetic theory of Is it gases. audible? Now we study about degrees of freedom. The number of directions Yes, get it. in which a particle can move freely. Yes, sir. Okay, okay. Listen it very carefully now. In the previous concept, we have studied about kinetic theory of gases. Now we study about degrees of freedom. The number of directions in which a particle can move freely is defined as its degree of freedom, or the number of independent coordinates required to specify completely the position and orientation of a particle in space is defined as its degree of freedom. So listen it very carefully. Try to understand the definition. It is the number of independent coordinates. Okay, or number of coordinates required. कितने coordinates आपको चाहिए? X coordinate, Y coordinate, Z coordinate to specify the position and orientation of the system completely or particle completely. अगर particle किस direction में move कर रहा है, it is moving along X direction, it is moving along Y direction, or it is moving along Z direction. because एक example आपको simple देता हूँ. Suppose एक monoatomic gas का एक molecule है, तो that molecule inside the cylinder it is free to move in all possible direction. It may move along, ऊपर जा सकता है, ऐसे आ सकता है, आपकी तरफ आ सकता है. Are you getting my point? Means it is able to move along y axis also, it is able to move along x axis also, and it is able to move along z axis also. मतलब आपको उस पार्टिकल का पोजीशन अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है, तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए बच्चों? 3 कोऑर्डिनेट्स यू रिक्वायर्ड. क्योंकि देखो इट मे मूव अराउंड y आल्सो, z आल्सो, x आल्सो. तो अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब 3 डिग्रीज में वो घूम सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है. बट याद रखो सिंगल मॉलिक्यूल कैन नॉट रोटेट. अभी देखो ऐसा आपको चेंज चाहिए. अनलेस एंड अंटिल यू गिव दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे इट इज नॉट एबल टू रोटेट. क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल रोटेट नहीं कर सकता. बट अगर ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा एक वाइब्रेशनल, तो पूरा का पूरा एक डंबल शेप में मूव कर सकता है अराउंड एक्स एक्सिस, अराउंड वाई एक्सिस, अराउंड जेड एक्सिस. ठीक है, वो देखेंगे. बट होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. लेट अस सी. Degrees of freedom are of 3 types. They are 1. Degrees of freedom of translational motion, Ft. 2. Degrees of freedom of rotational motion, Fr. 3. Degrees of freedom of vibration motion, Fv. Degrees of freedom, Fv. देखो once again we have 3 types of degrees of freedom. First, translational motion. Okay, मतलब कोई भी हो मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, कितने भी मॉलिक्यूल, अगर मिनिमम एक मॉलिक्यूल आपके पास होगा वो ट्रांसलेट हो सकता है. So minimum condition for translatory motion, translatory degrees of freedom is only one molecule. एक भी molecule होगा तो वो भी ट्रांसमिट हो सकता है एक्स वाई जेड एक्सिस. 2 हो गए तो भी चलेगा, 3 हो गए तब भी चलेगा, बट मिनिमम एक चाहिए. Then degrees of freedom for rotational motion. रोटेशनल मोशन के लिए कंडीशन क्या है? देखो मिनिमम आपके पास 2 मोलिक्यूल चाहिए, देन ओनली दे विल रोटेट. क्योंकि रोटेट होने के लिए आपको ऐसे डंबल लाइक स्ट्रक्चर चाहिए. देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे एक मोलिक्यूल चाहिए, यहाँ पे एक मोलिक्यूल चाहिए, देन दे विल रोटेट अराउंड एक्स एक्सिस आल्सो, अराउंड y एक्सिस आल्सो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मिनिमम आपके पास 2 मॉलिक्यूल चाहिए. ठीक है, तो ही वो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिखाएगा एनी 2 एक्सिस के अराउंड. और वाइब्रेशनल के लिए इट शुड बी अ पॉली.
अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मोर देन 3 4 5, ओके, पॉलीएटॉमिक गैस है, देन इट विल हैव द टेट्राहेड्रल बॉन्ड, स्ट्रक्चरल ट्रायंगुलर शेप वो बनाएगा, एंड देन इट इज एबल टू रोटेट अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, सब एक्सिस के अराउंड वो घूमेगा। समझ में आ रहा है? वो देखेंगे हम वीडियो में। तो बेसिक टाइप, एक सिंपल हिंट आपको दे रहा हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं इसको। सो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल होगा तो तीनों आपको मिलेंगे, दो हो गए तो वेल एंड गुड, तीन हो गए तो बहुत अच्छा। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन रोटेशनल मोशन और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2, दो हो गए तो रोटेशनल होगा, एक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली वाइब्रेशनल जो है मोर देन 2 चाहिए, मिनिमम 2, मोर देन 2 आपको चाहिए वहां पे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे Degrees of freedom of translational motion, FT. These are due to translational motion of molecules. Maximum number of translational degrees of freedom is 3, irrespective of that the molecule. See here, this molecule is moving along y-axis also, ठीक है? This molecule, आप यहाँ पे देख सकते हो, this molecule is able to move The along y-axis molecule also. may be This molecule monatomic is able to move of that along. the आप molecule देख सकते हैं यहाँ पे translational degrees of freedom is 3, irrespective of that of translational motion, FT. These are due to it is moving along x, देखो यहाँ पे x एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, it is moving along y एक्सिस also, ठीक है? So and it is moving along z एक्सिस also, अभी देखो z के अक्रॉस भी मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको कितने ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिले बच्चों, बोलो कितने ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिले, कितने कोऑर्डिनेट्स मिले ट्रांसलेशनल मोशन के? 3. So here we can say that it has 3 degrees of freedom and that too translational, ठीक है? आगे These are present at ordinary temperature. Degrees of freedom of rotational motion, FR. These are due to rotational motion of a molecule. now here you can see degrees of freedom of rotational motion, it is moving along y axis, ठीक है? It is moving along y axis, that's why I told you minimum 2 चाहिए, अगर एक एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है तो मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है? क्लियर? देखो यहाँ पे, हाँ, If it is moving along its own axis, then can we say it rotational motion? moving along Its own axis. it is spinning, इसको स्पिनिंग मोशन बोलते हैं, रोटेशनल नहीं। Okay, sir. ओके, मतलब यहाँ पे देखो इट शुड हैव द डंबल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब देखो ऐसा होना चाहिए। अब देखो ये मॉलिक्यूल है, ये डंबल है मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे के और यहाँ पे के, ओके? अगर इसको रोटेट करना है तो कैसे रोटेट करेगा? एक तो ऐसे घूमेगा, क्लियर? तो अराउंड कैसे, वाई एक्सिस घूम रहा है, क्लियर? नहीं तो एक ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है अराउंड जेड एक्सिस, ओके? और अराउंड एक्स एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस ऐसे रहेगा, इसके अराउंड ऐसे घूम सकता है, मतलब एक तो ऐसे घूम सकता है, नहीं तो ऐसे घूम सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब रोटेशनल मोशन अगर 2 मॉलिक्यूल होगी तो 2 टाइप के रोटेशनल मोशन आपको मिलेगी, समझ में आ रहा है? 3 हो गए तो 3 रोटेशनल मोशन आपको मिलेगी। वो देखेंगे यहाँ पे, देखो Position. now The this is number depends vibrational, upon the structure of the molecules. These are produced only at high temperatures. Degrees of freedom. तो वाइब्रेशन में 4. इतना हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो Monatomic पॉलीएटॉमिक के gas. बाद आता है। अभी यहां से A इंपॉर्टेंट हो जाता है, monatomic देखो gas degrees of freedom for monoatomic gas. Here we are going to consider degrees of freedom for monoatomic gas. Monoatomic मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, तो उसके वो कितने टाइम घूम सकता है, बोलो कितने टाइम? तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, बोलो इसके? यस कैडेट? ओके यस, तो ट्रांसलेशनल कितने आएंगे? 3. ट्रांसलेशनल आएंगे 3, ओके? रोटेशनल कितने आएंगे इसके, बोलो? 0. यस, क्योंकि रोटेशन के लिए कंडीशन आपको 2 चाहिए, सो इट विल हैव द रोटेशनल 0। वाइब्रेशन को तो सवाल ही नहीं, इट विल कम आफ्टर पॉलीएटॉमिक, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितनी हो गए, बोलो? 3. 3 हो गए, याद रखो। सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 3 ट्रांसलेशनल प्लस 0 रोटेशनल। वेरी गुड, नेक्स्ट देखो अभी, चलो नेक्स्ट पॉइंट। molecule can move linearly in any direction
along 3 coordinate axes. Hence, its degrees of freedom is Ft is equal to 3. Examples. Molecules of noble gases like helium, Example, neon, helium, argon, neon, etc. argon. Diatomic gas. अभी diatomic के लिए भी देखो. The center of mass of 2 atoms is free to move along 3 coordinate axes. Hence, its translational degrees of freedom is Ft is equal to 3. The molecules, if these gases can rotate about a perpendicular axis. Okay, so listen it very carefully. Now we'll discuss diatomic. Diatomic means it has dumbbell-like structure, like this structure it has. Okay, so this molecule can rotate along y, नहीं तो x, किसी भी दो एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करेगा. मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया, सपोज डम्बल-लाइक स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, एक तो ऐसे रोटेट कर सकता है हॉरिजॉन्टली, नहीं तो वर्टिकली रोटेट कर सकता है. वर्टिकली रोटेट होगा तो अलोंग y एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टली होगा तो अलोंग x एक्सिस होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल, डायटोमिक के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने मिलेंगे बोलो? 2. And as single molecule is sufficient to have the translational degrees of freedom, so how many translational degrees of freedom will get it? 3. ठीक है. So total degree of freedom for diatomic gas कितने मिलेंगे? 5. Yes, cadets. Did you understand now clearly? Yes, sir. Okay. Next. Passing through the center of mass in 2 directions. Hence, its degree of freedom of rotating motion is Fr is equal to 2. Therefore, total degree of freedom F is equal to Ft plus Fr is equal to 3 plus 2 is equal to 5. A triatomic or polyatomic gas, तीन nonlinear. molecule है भी triatomic gas. Degrees of freedom of translational motion Ft is equal to 3 and degrees of freedom of rotational motion Fr is equal to 3. Therefore, अभी देखो यहाँ पे, just imagine that, यहाँ पे देखो, I'll explain it. अगर यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये z एक्सिस है. जस्ट इफ यू कंसिडर ट्राइटोमिक, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा. तो ये आपको कितने कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी, 3 बॉन्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहे हैं. मतलब इसके अराउंड वो घूमेगा, लाइक दिस, ये दोनों घूमेंगे. क्लियर? यहाँ पे होगा तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगा. ठीक है, यहाँ पे होगा तो ऐसे फॉर्म करेगा. ओके, तो यहाँ पे ये इसके अराउंड घूम रहे हैं, यहाँ पे इसके अराउंड घूम रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे घूमने वाला है. समझ में आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाउ मेनी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल गेट इन ट्राइटोमिक? 3. Yes. So rotational degrees of freedom here 3, and how many translational? 3. Yes, translational also 3. So total degrees of freedom in polyatomic gas or triatomic gas? 6. Yes, 3 plus 3, 6. So hope I am very clear with it. Did you understand it? Yes, sir. sir. Okay. चलो ठीक है. So देखो, we'll once again we'll revise this point. देखो, so just now we have seen degrees of freedom. Okay, so यहाँ पे first we have seen translational degrees of freedom, rotational degrees of freedom, and vibrational degrees of freedom. Then we have seen degrees of freedom for monoatomic gas. First, for monoatomic gas. So tell me, for monoatomic gas, how many translational degrees of freedoms are there? 3. 3. How many rotational are there? 0. 0. So total degrees of freedom will be कितने हो गए हैं? 3. Yes, total 3 degrees of freedom for monoatomic gas. ठीक है. Similarly, for diatomic gas, Translational 3. Rotational 2. translational 3 and rotational 2. 2. So total will get 5. 5 degrees of freedom. And for triatomic gas or polyatomic gas कितने मिलेंगे बोलो? 5. Translational 3. Translational 3. 3. Rotational Total also 3. So we'll get total 6 degrees of freedom. Understood? But there is simple way. ये तो physical meaning हो गया.
there is one more formula we have. There we can calculate degrees of freedom. The formula you write down. Okay, so here I'll write the formula. देखो अभी, try to understand. What is the formula? How do we calculate it? So formula is like that. This is the formula. F, that is degrees of freedom, total number of degrees of freedom is equal to 3n minus k. So here F is degrees of freedom. I repeat, F is degrees of freedom. N is total number of molecules. कितने molecules हैं? और k is independent coordinates. मतलब कितने कोऑर्डिनेट है. फॉर एग्जांपल देखो, मोनो में एक ही मॉलिक्यूल है तो ए स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, कोई बॉन्ड नहीं है तो इसमें k 0 होगा. ओके, और n क्या होगा? 1 होगा. फॉर डायटोमिक देखो आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलने वाला है तो a हो गया आपका n. ओके, तो a आपका हो गया, एक बॉन्ड आपको मिल गया, एक रिलेशन मिल गया आपको यहाँ पे, तो k होगा 1 यहाँ पे. ठीक है, और n कितना होने वाला है? 2 होने वाला है. फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको k कितना मिलने वाला है बोलो? यस बच्चों, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड आपको दिख रहा है तो k की वैल्यू मैंने 1 लिखा है. यहाँ पे तो बॉन्ड ही नहीं है तो k 0 हो गया. तो यहाँ पे k कितना होगा? कितने बॉन्ड मिल रहा है आपको? 3. तो k यहाँ पे 3 हो गया. क्लियर? और n क्या रहेगा बोलो ट्राइएटॉमिक के लिए? 3. So you put the value. देखो, for monoatomic we'll put the formula F is equal to 3 into 1 minus 0, so it will come 3. So that's why the monoatomic has 3 degrees of freedom. मैच हो गया. For diatomic के लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं F is equal to 3 into नंबर कितना आएगा? 2 माइनस, यस बच्चों, माइनस क्या होगा? 0 1 minus 1, क्योंकि 1 है ना के यहाँ पे, तो ये आएगा 3 to the 6 minus 1 5. तो 5 मैच हो रहा है. एंड हियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आएगा बोलो? 3 into 3 minus 3. So 9 minus 3 6 आ जाएगा. क्लियर? So in this way also we can find. I repeat, there is one more method, mathematical method to find degrees of freedom. So F is equal to 3n minus k. F is the total number of degrees of freedom, n is the number of molecules, k is the independent variable or relation between molecule. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल है तो there is no relation exist, so k is equal to 0. Here दो मॉलिक्यूल तो एक रिलेशन आपको मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल में 3 रिलेशन आपको मिलेंगे, 3 बॉन्ड आपको मिलेंगे. ठीक है, सो k की वैल्यू डायटोमिक में 1 होती है, मोनोएटोमिक में 0 होगी और ट्राइएटोमिक में 3 होगी. ठीक है, नंबर तो आपको पता है, मोनोएटोमिक 1 मोल होगा, डायटोमिक में 2 मोल होंगे और ट्राइएटोमिक में देयर आर 3 मोल्स. इफ यू पुट द वैल्यू, द मोनोएटोमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल कम 3, फॉर डायटोमिक इट विल कम 5 एंड फॉर ट्राई और पॉली इट विल कम 6. ट्राई तक हम देखते हैं. So did you understand completely what is degrees of freedom? And sir, in poly sir, पॉली में हम रिलेशन, इट डिपेंड्स कितने रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने रिलेशन, कैसा टेट्राहाइड्रल बॉन्ड है, कोवेलेंट कैसे अटैच हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन इट. बट ज्यादा से ज्यादा इतना डिटेल में हमें फिजिक्स में नहीं जाना है, एक केमिस्ट्री का पार्ट है, जनरल हमें देखना है. बट इट मे कम न्यूमेरिकल फॉर नीट और जेईई एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन दिस मच डेप्थ. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes sir. खाली आप याद रखो, व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाउ मेनी independent coordinates required to specify the position of the particle completely in monoatomic gas? Answer is 3. How many number of coordinate system is required for diatomic gas? Answer is 5. And how many coordinates are required to specify the position of the particle in triatomic gas? The answer is 6. In short, in monoatomic gas we have 3 degrees of freedom, in diatomic gas we have 5 degrees of freedom, that is 3 plus 2, 3 translational, 2 rotational, and in triatomic gas we have 3 plus 3, that is 3 translational, 3 rotational. Vibrational is depends upon the bonding, but vibrational का भी थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको. वाइब्रेशनल जो होता है, याद रखो, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी 2 होते हैं. एक होता है काइनेटिक एनर्जी वाला और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी वाला. ठीक है, क्लियर? बट इतने डिटेल में नहीं जाने. याद रखो वाइब्रेशनल में भी हमें 2 मिलते हैं. ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक काइनेटिक एनर्जी वाला, एक पोटेंशियल एनर्जी वाला, 2 टाइप वाइब्रेशनल हमें मिलते हैं. ठीक है, बट डोंट गो इन दैट डेप्थ फॉर सीबीएसई गेट एग्जामिनेशन. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू स्टडी नीट एंड जेईई, देन आस्क मी
if you get the time, I'll again come on this topic, vibrational degrees of freedom. ठीक है? So NDA hope, get. हाँ बोलो. So hope I am very clear with degrees of freedom for mono, di and poly. Clear? Yes, sir. Yes. Now next point. Next is very important point. Law of equipartition of energy. Write down the statement. ये बहुत important law है इस topic का. Write down. सर नोट्स कैसे बनाए सर, समझ में नहीं आ रहा सर. हाँ नोट्स आई विल गिव, डोंट वरी. नोट्स बहुत इजी है इसकी, जितना डेप्थ में मैंने सिखाया उतना डिफिकल्ट नहीं है. नोट्स आई ऑलरेडी आई विल शेयर यू, डोंट वरी एट ऑल. नोट्स के बारे में चिंता मत करो. सर प्लीज आज ही कर देना सर. सर आज ही कर देना. ठीक है, टुडे ओनली आई विल शेयर. नहीं So तो write लिख नहीं down. पाएंगे. हाँ ओके बोलो मनीष. सर आज ही कर देना, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे सर, कल आना यस है. यस यस, टुडे ओनली आई विल शेयर. Okay. ठीक है. लॉ ऑफ After the- इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. राइट डाउन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, TION, partition of energy. ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है. व्हाट इज एग्जैक्टली द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? मतलब अगर मॉलिक्यूल घूम रहा है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, सपोज जस्ट इमेजिन दैट वंस अगेन. यहाँ पे देखो एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है. इस सिलेंडर में अब यहाँ पे भी पिस्टन है. इट इज फीटेड विथ वेटलेस, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है. जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द मॉलिक्यूल. दिस इज द मॉलिक्यूल. ठीक है. ये मॉलिक्यूल है गैस में, मोनोएटॉमिक गैस का. जस्ट इमेजिन दैट. नाउ एज वी नो दिस मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे बोलो? डू वी गेट एनी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस? No. No. So we'll get total three coordinates are required, x, y, z. So 3 degrees of freedom मिलेगा. वो भी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मिलेंगे. अंडरस्टूड? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो पूरी की पूरी जो उसकी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, वो तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है गैस. आई विल रिपीट वंस अगेन. अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है, what does it mean? The thermal equilibrium system means there is no temperature difference between system and surroundings. System का temperature, surrounding का temperature अगर equal होगा, there is no temperature difference between system and surroundings, then the system is said to be thermal equilibrium. समझ में आ रहा है? और ऐसे अगर thermal equilibrium system होगी तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी गैस की, मॉलिक्यूल की, वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. समझ में आ रहा है? और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. और वो कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में? वो आपको मिलेगी हाफ kb इंटू टी. हाफ kt. हाफ k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए kt लिखते हैं, b सफिक्स में हम लिखते हैं. यहाँ पे छोटा सा b आपको निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द स्टेटमेंट. इसका स्टेटमेंट क्या है देखो. राइट डाउन द स्टेटमेंट. सो लिखो स्टेटमेंट. द थर्मली for thermal equilibrium system, you write down, I am not going to write anything on the screen. You write down for thermal equilibrium system, for thermally equilibrium system, for thermally equilibrium system, all energy is equally distributed among all possible degrees of freedom. All energy is equally distributed. Equally distributed, okay, equally distributed among all possible degrees of freedom. all possible degrees of freedom में distribute हो जाती है. and energy associated with each degree of freedom is half kBT. समझ में आ रहा है? तो एनर्जी कितनी एसोसिएट होगी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में? देखो once again you try to understand the statement, okay, and this is applicable for thermally equilibrium system only. This is applicable for thermally equilibrium system. Sir, means it is moving equally in all directions. Yes, that's what we have studied. Pressure exerted by the gas in all possible direction, force exerted by in all possible directions is always same. x पे उतना होगा, y पे उतना होगा, z पे उतना होगा. तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे स्टडी क्या करना है कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा. वो हमें प्रूव करना है यहाँ पे. मींस
if the system is thermal equilibrium, अगर system thermal equilibrium होगी, then total energy of the gas molecule or total energy of the system is equally distributed among the all possible degrees of freedom. सब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो कितनी आएगी, हाफ इंटू के इंटू टी आएगी, हाफ इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इतनी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो हमें प्रूव करना है हर एक एक्सिस के लिए इतनी एनर्जी आती है, ई इतना आना चाहिए। और वो कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब टेम्परेचर है तो वहां पे वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी इज पजेस्ड बाय, और वेलोसिटी पजेस विच एनर्जी? इट गिव्स द काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? शुड वी गो अहेड विद द प्रूफ? प्रूफ के लिए जाए हम? Yes, sir. ओके, तो वैष्णवी, बिफोर आई कुड एक्सप्लेन द प्रूफ, will you please explain what is the statement of law of equipartition of the energy? Sir, in thermal equilibrium system, Yes. the heat is equally No, not distributed heat, among. not heat. All energy of the system. Yes, Which sir, all energy? energy. Kinetic energy. All energy of the system. बोलो आगे। हाँ, All energy of the system is distributed equally among all degrees of freedom. all possible degrees of freedom. All possible degrees of freedom. And energy associated with each degree of freedom is? half kBT. Okay, one second, Vaishnavi, one second. हाँ, In thermal equilibrium system, the kinetic energy is equally distributed among all possible degrees of freedom, and energy associated with each degree of freedom is equal to half kBT. वेरी गुड, इज इक्वल टू हाफ केबीटी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिखो, सुबह ही हमने देखा था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, सो वी नो दैट। प्रूफ देखो, उसकी प्रूफ डिस्कस करेंगे। वी नो दैट, क्या हमें पता है? हमें पता है टोटल एवरेज एनर्जी कितनी होती है? 3/2। यस बच्चों, क्या होते हैं? बोलो 3/2। 3/2 kT। यस, 3/2 kT होती है। मतलब ये एनर्जी, कौन सी एनर्जी हम बात करते हैं? काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो आई कैन राइट दिस, वी कैन राइट इट हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटली काइनेटिक एनर्जी। ओके, बट यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है? अगर है वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज सेम इन ऑल पॉसिबल, ऑल x y z कोऑर्डिनेट्स। तो जस्ट इमेजिन दैट, यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन करो, vx, vy and vz are the coordinates of the velocity v along x, y, z axis respectively. Means the total velocity, the average velocity, we are going to resolve into its three mutually perpendicular component, that is x, y, z axis. That is, vx is the component of velocity v along x axis, vy is the component of velocity v along y axis, and vz is the component of velocity along z axis. Clear? तो कैसे लिख सकते हैं? सो टोटल वेलोसिटी वी कैन राइट इट v इज इक्वल टू vx प्लस vy प्लस vz। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे? v² इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट vx² प्लस vy² प्लस vz²। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. Now use equation 1, 2 in 1, use equation 2 in equation 1। तो इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा? बोलो, इट विल कम हाफ m। ठीक है, यहाँ पे आएगा vx² प्लस vy² प्लस vz² इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, k is Boltzmann constant, you multiply inside, so you'll get the value half m vx² plus half m vy² plus half m vz² is equal to 3/2 into kT. Yes student, is that clear up to this point? Yes sir। Okay, मतलब यहां पे आपको क्या मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी अलोंग x एक्सिस
काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग z एक्सिस, एंड उस सब काइनेटिक एनर्जी आप सम लोगे तो आपको मिलेगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी E एवरेज, ठीक है, और वो कितनी होगी 3/2 kBT होगी। समझ में आ रहा है? मतलब E एवरेज हमने स्प्लिट किया है अलोंग x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो once again I repeat, half mvx square indicates the kinetic energy along x axis, half mvy square indicates kinetic energy of the molecule around y axis, half mvz square indicate kinetic energy of the molecule along z axis, ठीक है, एंड टोटल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऑल सबके साथ कितने एसोसिएटेड है 3/2 kBT, तो हमें एक के साथ निकालनी है, बट एज वी नो प्रेशर होगा, फोर्स होगा, वेलोसिटी होगी, वो तीनों के तीनों हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में तो सेम ही होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम, वेलोसिटी सेम रहेगी तो मास तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, सो वी कैन राइट इट काइनेटिक एनर्जी along all possible direction or all three direction it is same, so we can write it half mvx square is equal to half mvy square is equal to half mvz square। समझ में आ रहा है? मतलब here kinetic energy is same among the all possible direction, all three direction। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सब, यहाँ पे हम vx पुट करेंगे, बच्चों बोलो, इन इक्वेशन ए इक्वेशन अगर 4 if you put it in 3, मतलब सबकी वैल्यू अगर आप mvx square अगर पुट करोगे, सो हियर वी कैन राइट हाफ mvx स्क्वायर, ओके, प्लस इसकी वैल्यू भी क्या है, इक्वल है हाफ mvx स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या है हाफ mvx स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या आएगी 3/2 kT आएगा। सो इसका एडिशन क्या आएगा, इट विल कम 3/2 mvx स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT आएगा। यस बच्चों, इज दैट करेक्ट? यहां तक क्लियर है? देन वी कैंसल 3 and 3 कैंसिल करेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो, हियर विल गेट हाफ mvx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kT। मतलब यहां पे आपको पता चलेगा द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ विच डायरेक्शन यहां पे इंडिकेट किया है, विच डायरेक्शन वी हैव इंडिकेटेड हियर, X. x कोऑर्डिनेट। सो x डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी, x डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ kBT रहेगी। सिमिलरली इफ यू गो फॉर हाफ mvy स्क्वायर, इसके लिए क्या आएगी बोलो, Half kBT. हाफ kBT। सिमिलरली वी विल गो फॉर z एक्सिस के लिए, इसके लिए भी क्या आएगी, half kBT. हाफ kBT। Half kBT. This is our proof. That's why I told you energy associated with each degree of freedom is always half kBT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होगी, हाफ kB इंटू T। समझ में आ रहा है? सो वंस अगेन देखो, प्रूफ उसका ये बहुत ही आसान लॉ है। आई रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन, स्टेटमेंट आपने डिलिबरेटली मैंने नहीं लिखा, यू शुड राइट डाउन व्हाट इज द स्टेटमेंट। आई रिपीट वंस अगेन, if or for thermally equilibrium system, I repeat, for thermally equilibrium system, total energy of the system is equally distributed among the all possible degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom is half kT। मतलब सब पूरी जो एनर्जी है, पूरी एनर्जी कितनी है 3/2 kBT है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट कंडीशन क्या है, द सिस्टम मस्ट बी थर्मल इक्विलिब्रियम। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है y x z तीनों एक्सिस में, कंडीशन इज थर्मल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए सिस्टम, और हर एक एक्सिस के हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो एनर्जी कितनी है, हाफ kBT है। अंडरस्टूड बच्चों? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Should we go ahead, last point of today's topic, today's lesson, should we go ahead with? Yes, sir. ओके, तो लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी हम यहाँ पे दिस पॉइंट डेलिबरेटली आई एम टेकिंग ओनली एंड ओनली फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, those cadets those who are preparing for JEE NEET, but yes, कि सर आप बोलोगे कि सर इतना हम रश में जा रहे हैं, सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं, एक्स्ट्रा क्लास, दिस इज द इवनिंग टाइम, दिस इज नाउ राइट, इफ यू सी द टाइम इट्स 1900 आवर्स ऑलरेडी, 2000 आवर्स का टाइम है अभी, तो 8 बजे हम क्लास ले रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 का। ओके, तो आप एक क्यों सिखा रहे हो, रीजन, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई गेट एग्जामिनेशन आल्सो। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, एंड विल आई गिव हियर with the relation of
इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे यू राइट डाउन द हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग दो। ओके, एक मैं आपको दूंगा, दूसरा आपको खुद सॉल्व करना है। सो राइट डाउन द हेडिंग, मोलर स्पेसिफिक हीट, molar specific heat of monoatomic gas, molar specific heat for monoatomic gas. So can anyone tell me how many number of molecules are there in monoatomic gas? वन मॉलिक्यूल। मतलब यहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? ओके, बट एक गैस है, मॉलिक्यूल है, बट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर ऑफ सेम गैस। एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे हेलियम के पार्टिकल हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब देखो आपको कैसे जाना है इसके लिए। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए फर्स्ट थिंग यू शुड नो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स आर देयर फॉर मोनोएटॉमिक गैस। बच्चों बोलो 3. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 3। ठीक है, मतलब यहां पे आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। बट एक फॉर्मूला मैं आपको यहां पे देता हूं, फॉर्मूला हमेशा याद रखो। सो बिफोर गोइंग टू द फॉर्मूला यू शुड राइट डाउन एनर्जी। ओके, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल यहां पे लिखो। फर्स्ट एक मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, देन विल गो फॉर द गैस। एनर्जी ऑफ वन मोल और वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? देखो उसका एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू राइट डाउन, इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच आई हैव गिवन फॉर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने के लिए? बोलो फॉर्मूला क्या दिया है, हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला। यस कैडेट्स, degrees of freedom into energy associated with each yes, degree of freedom. energy of one molecule is equal to degrees of freedom into energy associated with each degree of freedom। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो आप बोलो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें रहेंगे? 3। और एक के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी? 1/2 1/2 kV. kV. यस, 1/2 kT। तो ये क्या आएगा बोलो? एक मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा? एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, एनर्जी फॉर वन मोल कितना आएगा? 3/2 kV. 3/2 kVt. kT आएगा। वंडरफुल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? देखो एनर्जी ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ गैस, टोटल गैस की एनर्जी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स हम स्टैंडर्ड लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम एवोगाड्रोस नंबर इनटू एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसका भी एक फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला लिखा आपने? देखो टोटल गैस के लिए कैसे निकालना है कि एक मॉलिक्यूल के लिए जितनी एनर्जी लगेगी इनटू एवोगाड्रोस नंबर, उसका मोलर स्पेसिफिक हीट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा बच्चों? एनर्जी ऑफ गैस क्या आएगी? यहाँ पे बोलो मुझे, टेल मी व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ गैस। यस कैडेट, 6.02 into 10⁻23. यस, नहीं, ओ एज इट इज रखो, एन एज इट इज रखो, इनटू ये आएगा 3/2 3/2 kVt. kBT। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट इन द टेल, Na इंटू kB क्या होता है? यस बच्चों, Boltzmann constant. ए बेटा, R universal constant. यस क्लियर, कल ही सिखाया था। तो एनर्जी ऑफ द गैस आपको क्या मिलेगी? 3/2 RT मिलेगी। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे एनर्जी ऑफ एंटायर गैस फॉर डायटोमिक गैस विल गेट 3/2 RT। क्लियर? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay, but we know that for molar specific heat at constant volume, what do you write? मैंने सिखाया था आपको, देखो आप इसको E भी लिख सकते हैं और एनसीईआरटी में U यूज किया है। फॉर एनसीईआरटी क्या यूज किया है? ओके, यस बच्चों, एनसीईआरटी में क्या यूज किया है? U. U यूज किया है। तो यहाँ पे मैं E रख रहा हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम कैसे इंडिकेट करते हैं इसको, सीवी इंडिकेट करते हैं। और कितनी होती है, डेरिवेटिव होती है एनर्जी का, डी बाई डी टी होती है वो, डी बाई डी टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, कैपिटल लिखता हूं डेलिबरेटली, आई एम राइटिंग कैपिटल हियर, डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कितनी होती है, 3/2 RT होती है। ठीक है, अब सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका। हाउ वी आर गोइंग टू डू द डेरिवेटिव, बच्चों बोलो। CV इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बाई, तो 3/2 R तो कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा डी बाई डी टी ऑफ टी। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1. तो यहां पे मिला आपको मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कितनी मिली, 3/2 R मिला। ठीक है, अब एक और आपको केमिस्ट्री में रिलेशन आएगा, याद रखो मेयर्स रिलेशन बोलते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन। ठीक है, इट विल कम इन द केमिस्ट्री आल्सो। तो यहां पे लिखो अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन, Meier's relation, it gives the relation between two specific heat, मतलब specific heat of gas at constant volume and constant pressure. तो relation between Meier's relation, it is relation between Cp and Cv होता है, Cp and Cv. What is Cp बच्चों, Cp क्या होता है बोलो, Specific heat at constant pressure. yes, and Cv is molar specific heat at constant volume. तो according to Meier's relation, Meier's relation क्या बोलता है हमें, what exactly the Meier's relation, I'll write here. तो देखो Meier's relation बोलता है it gives the relation between two specific heat, मतलब Cp minus Cv, याद रखो Cp minus Cv is always R. This is the Meier's relation. ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Cp कितना आएगा बोलो, Cp we can write R plus Cv। तो R कितना है, ओके, तो CV कितना है बोलो बच्चों, यस बच्चों, 3/2 R. यस 3/2. 3/2 R। तो व्हाट विल बी CP, CP कितना आएगा, 5/2. यस, सो CP विल बी 5/2 R। वही तो मैं कल बोल रहा था, एक एग्जांपल हमने देखा था, देखो अगर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको मोनोएटॉमिक गैस की चाहिए तो इट इज 3/2 R होती है, and molar specific heat at constant pressure for monoatomic gas it is 5/2 R. Is that clear बच्चों, क्लियर हो गया। Yes sir. वन मोर, एक छोटा सा पॉइंट है एडियाबैटिक कांस्टेंट, वो भी आपको सिखा देता हूं यहाँ पे, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ओके, तो एडियाबैटिक कांस्टेंट हम क्या लिखते हैं, आपको पता होगा, वी यूज टू राइट इट PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं हम, लिखते हैं ना बच्चों, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV रेस टू गामा। और गामा होता क्या है, इट इज रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv होता है, और Cp अपॉन Cv होता है। तो इसके लिए रेशियो क्या आएगा बोलो, व्हाट इज Cp, 5/2 R, और Cv क्या है, 3/2 R। so RR और 2 get cancel it, so it will come 5/3. so I repeat here, adiabatic constant for monoatomic gas कितना होगा, it is 5/2 होगा, that is somewhere around 1.4. yes बच्चों, यहाँ तक क्लियर है एवरीथिंग, just let me know, is it clear up to this point? 5/3. हाँ, yes, sorry, it is 5/3. clear, understood? so देखो once Yes, again, Yes, sir. हाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि उसके आगे का ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। देखो फर्स्ट थिंग, वी हैव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, इट इज 3। देन एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल आपको निकालना है। सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इनटू एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए, 3 होते हैं, इनटू एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी देखा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने देखा था, वो आता है Kb इंटू T/2। सो ये आएगा एक मोल के लिए एनर्जी कितनी होगी, 3/2 kBT होगी। बट एनर्जी फॉर एंटायर गैस इंक्लोज्ड इन द कंटेनर वी कैन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर इंटू एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये आएगा Na इंटू 3/2 kBT। बट Na इंटू Kb क्या होता है, R होता है, so it will come 3/2 RT आएगा। RT. Then molar specific heat at constant volume,
वो CV dE by dt होती है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इट विल कम CV इज इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट, सो dt by dt क्या आएगा, सिंपली इट विल कम 1. अंडरस्टूड? नाउ द CV we got it 3/2 R, but according to Mayer's relation CP minus CV is equal to R, बहुत इंपॉर्टेंट है Mayer's relation केमिस्ट्री का आपका. So if you put the value of CV here 3/2 R will get CP 5/2 R. ठीक है, तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक गैस at constant volume 3/2 R and molar specific heat for monoatomic gas at constant pressure 5/2 R. Clear? Yes, sir. And adiabatic constant PV raised to gamma is equal to constant. So gamma क्या होता है, Cp upon C, it is a ratio of two specific heat. तो देखो यहाँ पे 5/3 आ जाएगा. इसलिए मैंने बोला कि थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, यहाँ पे भी पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि गामा होता क्या है, वो हम रेस्ट टू क्यों लिखते हैं, वो कितनी वैल्यू होती है. सो वैष्णवी, नाउ इज इट क्लियर? तुमने क्वेश्चन पूछा था, यू आस्क्ड कि सर गामा गिवन होता है क्या. सो गामा इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी गैस. क्लियर? Yes, sir. तो वैष्णवी, व्हाट इज गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 5/3, मतलब अराउंड 1.4 समथिंग इट विल कम. ठीक है, अंडरस्टूड नाउ? क्लियर कैडेट्स? Yes, sir. ओके, नाउ ये देखो 5 मिनट में दूसरा भी हो जाएगा, इसलिए इसको इतना हमने टाइम दिया. अब देखो मैजिक. नाउ विल गो फॉर, देखो यहाँ पे आप ही करोगे सब, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फॉर डायटोमिक गैस. हम किसके लिए जाएंगे? डायटोमिक गैस के लिए जाएंगे. तो बोलो डायटोमिक में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2. कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2. 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं. और कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? 5. 5. यस, टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी हैव. तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो 3 की जगह पे? 5. 5/2. यस, इट विल कम 5. तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेन इट विल 5/2. ठीक है ना? यहाँ पे अगेन 5/2. हियर अगेन 5/2. क्लियर बच्चों? क्लियर है? हियर अगेन 5/2, 5/2. कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. तो बोलो यहाँ पे भी क्या आएगा? 5/2. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? हियर इट विल चेंज. 5/2 नहीं आएगा, 7/2. कितना आएगा? 7/2. 7/2. एग्जैक्टली 7/2. तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना होगा? यहाँ पे क्या आएगा रेशो? यस बच्चों? 7/3. 3. No, Exactly. 7/5. Yes, so it will be 7/2 divided by 5/2. Clear? तो क्या आएगा? 7/5. 7/5. Is it correct? So अब बोलो what is gamma for diatomic gas? कितना होता है gamma? 1.4. 1.4. Understood? That is 7/5. तो इनिशियली 1.6 आएगा फॉर मोनो. वैष्णवी, क्लियर नाउ हियर? Yes, sir. कितना इजी है देखो, एक स्टेप अच्छे से करो, दूसरे में सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स. तो वंस अगेन फॉर डायटोमिक गैस वी हैव टोटल 5 नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ट्रांसलेशनल 3 होते हैं और रोटेशनल 2 होते हैं. सो इट विल हैव 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम or energy associated with for we can calculate energy for one molecule is equal to degrees of freedom into energy associated with each degree of freedom. So it will come 5 into half kBT. So energy for one molecule it will come 5/2 into kBT. ठीक है? So energy of the gas we can calculate Avogadro's number into energy of one molecule. So Na into 5/2 kBT for one molecule. तो ये आएगा 5/2 RT. As we have Na into kB is universal gas constant. But molar specific heat at constant volume it will come derivative of energy with respect to time. क्योंकि एनर्जी चेंज करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो 5/2 R
ओके, सो मेयर्स रिलेशन के हिसाब से Cp minus Cv is equal to R. So you put the value of Cv here, so you will get Cp 7/2 R. Then adiabatic constant gamma, ratio of two specific heat Cp upon Cv, it will come 7/5. So hope I am very clear with molar specific heat of diatomic gas. Yes बच्चों, यस सर। fill in the blanks के लिए गैट को भी आ सकता है. What is the total energy associated with the gas in the diatomic gas? कितने आएगी? 5/2 RT. What is the molar specific heat at constant volume for diatomic gas? It is 5/2 R. What is the molar specific heat at constant pressure for diatomic gas? 7/2. 7/2. And what is adiabatic constant for diatomic gas? 7/5. 7/5. 1.4. So we have went in depth for this particular point. Now one more last point, polyatomic का भी देखेंगे. Okay, so should I erase this? बच्चों आपने स्क्रीनशॉट लिया? अरे इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट लिया था क्या? इसके पहले वाले का फॉर मोनो के लिए लिया था? नो सर। ओके, Sir, will you share this recording? हाँ रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे डालने वाला हूं मैं, ठीक है? ठीक है. So should are you able to derive the relations for monoatomic gas with the help of diatomic? Yes, sir. सर पॉली का भी करेंगे ना सर? हाँ यस मनीष, सर पॉली का सर अलग होगा क्या? पॉली का पॉली का, हाँ यस यस, पॉली का अलग होगा, आपको देता हूँ क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल भी कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे देखो ये इरेज. ओके, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ. आप लिखो, हेडिंग दो, मोलर स्पेसिफिक हीट. गिव मी 10 मिनट ओनली. सर मोलर. आप नोट्स भेजने वाले हो ना सर? हाँ, आई विल शेयर द नोट्स, डोंट वरी एट ऑल. बट नोट्स Really? इतने अच्छे नहीं होंगे. जितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उतने अच्छे नोट्स एक्सपेक्ट मत करो. नोट्स खाली आपके रेफरेंस के लिए होगी. ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर उधर किया होगा उस लड़कों ने, क्योंकि मेरे खुद के नोट्स नहीं भेज रहा हूं. जो मेरे नोट्स किसने डिक्टेट किए क्लासरूम में वो आपको भेज रहा हूं. अंडरस्टूड? मनीष क्लियर? यस सर। ओके. क्योंकि भूल जाते हैं सर बाद में ये सब फिर। नहीं, नोट्स के लिए नहीं, अभी इमीडिएटली आई विल शेयर. ओके चलो. तो सर मैं बोल रहा था सर, जो पढ़ा रहे हो ना सर फिर भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए नोट जरूरी होता है। अभी शेयर किए, अभी देखो ग्रुप पे चेक करो. आगे? यस सर आ गए। डोंट वरी, अभी डोंट सी द नोट्स, यू कॉन्सेंट्रेट फॉर पॉलीएटॉमिक गैस. नोट्स भी आपके सामने होंगे. पॉली का वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, नोट्स का ही, तो आपके लिए आसान हो जाएगा. मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीएटॉमिक गैस. ठीक है, तो पॉली के लिए क्या होगा देखो. हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर फॉर पॉलीएटॉमिक गैस? 6 प्लस हम कंसीडर करते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, FV भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, जो हम डिस्कस नहीं करते, बट X Y Z इतने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए, इसे पकड़ के चलो, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो गिवन देते हैं, FV की वैल्यू गिवन देते हो. ठीक है, फॉर पर्टिकुलर केस, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. ओके, वो कितना है, कितने मॉलिक्यूल्स उसमें, 5 6 7 8 9. ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 6 प्लस FV. व्हाट डज इट मीन FV बच्चों? FV का मतलब क्या है? यस. तो यहाँ पे देखो 1 मोल के लिए एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी फॉर 1 मोल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बोलो. अरे अभी तो मैंने दिया था. एनर्जी फॉर 1 मोल क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? Degrees of freedom into energy associated with one molecule. यस, एनर्जी एसोसिएटेड. डायरेक्ट लिखता हूं मैं, एनर्जी एसोसिएटेड. तो क्या होगी? Each degree of freedom. यस. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? और तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 6 नो, तो आपको समझ में आना चाहिए. तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, प्लस 3 रोटेशनल होते हैं, प्लस FV वाइब्रेशनल होते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3 है. ओके, तो 3 + 3 6 भी डायरेक्टली आप कर सकते हो. ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू गो फॉर दिस 3/2 kBT. ठीक है, प्लस 4A3
3/2 kBT, मतलब 3 into half kBT एक्चुअली, ठीक है। प्लस यहां पे देखो अभी ट्विस्ट इन द टेल, F आएगा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू, मैंने बोला था वाइब्रेशनल में दो होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी का, एक पोटेंशियल एनर्जी का, तो 2 इंटू एनर्जी एसोसिएटेड दैट इज हाफ केबीटी आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 3/2 ट्वाइस हो गया, सो इट विल कम 2 विल गेट कैंसल, मतलब यहाँ पे 2 इंटू हाफ, केबीटी, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू केबीटी प्लस यहाँ पे आएगा F इंटू केबीटी। ओके, तो केटी कांस्टेंट निकालो यहां से, तो क्या आएगा 3 प्लस F इंटू केटी। यस बच्चों, तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्लियर हो गया कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी। इज दैट क्लियर? 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 2 होते हैं वाइब्रेशनल। तो 3 इंटू हाफ केबीटी, 3 इंटू हाफ केबीटी प्लस F इंटू हाफ केबीटी, बट F में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वाइब्रेशन में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है। सो 3 प्लस F इंटू केबीटी आएगा, अंडरस्टूड। सो टोटल एनर्जी कितनी होगी बोलो? यस कैडेट? Sir, what is this F here? F इज वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, FR। समझ में आ रहा है? F इज वाइब्रेशनल DOF। क्लियर वैष्णवी? इसकी वैल्यू सर? इसकी वैल्यू मतलब वो गिवन होगी, वी डोंट नो, इसलिए तो मैंने बोला। Yes, और sir. एवरी एटम के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर 2 3 हो गए तो ऐसे ज्योमेट्री होगी, ओके 4 हो गए तो पता नहीं कैसी ज्योमेट्री होगी, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, वी डोंट नो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. डिपेंड्स ऑन दी नेचर, टेट्राहेड्रल कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो 3 तक हम पॉसिबली करते हैं, 3 के बाद वाइब्रेशन हम कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपली यू पुट FR मतलब F मतलब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसके 2 होते हैं, 1 फॉर काइनेटिक एनर्जी, 1 फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, इतना याद रखो, ठीक है। तो ये कि देखो यहाँ पे 3 प्लस F इंटू केबीटी आएगा, सो एनर्जी फॉर गैस कितनी आएगी बोलो बच्चों? गैस का फॉर्मूला क्या था? total number of molecule into energy of इंटू one molecule. दिस, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, सो 3 प्लस F इंटू केबीटी आएगा, ठीक है। बट N इंटू केबी क्या आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ? यस, सो एनर्जी ऑफ गैस विल गेट 3 प्लस F इंटू R T। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर Yes. है? ओके, अब देखो नाउ यू सी, अभी एनर्जी ऑफ गैस मिला, अब CV की वैल्यू निकालनी है। CV क्या होता है आपको पता है? CV मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है D/dt, मतलब E होगा, एनर्जी होगा गैस का। सो इट विल कम, क्या आएगा बोलो? कांस्टेंट इसमें, सो डायरेक्ट शुड राइट इट डायरेक्टली, 3 प्लस F R कांस्टेंट है तो dt/dt 1 आएगा, सो इट विल कम 3 प्लस F into R। yes cadet, is that clear? अरे बोलो क्लियर है क्या? बट अकॉर्डिंग टू मेयर रिलेशन, मेयर्स रिलेशन क्या बोलता है हमें? CP इज इक्वल टू CV प्लस R, राइट। तो हम क्या करेंगे? 3 प्लस F इंटू R प्लस R एंड ब्रैकेट एक्सपांशन करें, सिंप्लीफाई करके, तो CP की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों बोलो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CP? It will be 4 plus F into R. Okay, आप ट्राई करके देखो, it will come 4 plus F into R. Understood? And then go for adiabatic constant. Adiabatic constant के लिए जाओ. So what is adiabatic constant here? Gamma is equal to CP upon CV. तो what is CP? बोलो CP क्या होगा? 4 plus F into R. यस, तो यहाँ पे क्लियरली लिखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो इट विल कम 4 प्लस F, ओके, तो R कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस F। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब स्टिल गामा इज डिपेंड अपॉन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर मनीष? क्लियर है? यस सर, यस सर। Okay, so देखो, today's class we have seen what is law of equipartition of energy. उसमें हमने सीखा था if the energy or if the system is
thermal equilibrium. If the system is thermally equilibrium, then the energy associated with each degree of freedom or energy okay, Is equally vice versa हम distributed. ऐसे बोल सकते हैं, if system is thermal equilibrium, then the total energy is distributed equally amongst the all possible degrees of freedom, and energy associated with each degree of freedom is half kBT, right? तो हमने वो प्रूव किया था. Then we have seen degrees of freedom. Degrees of freedom होता क्या है? Okay, for monoatomic gas एक molecule होता है तो 3 translational degrees of freedom होते हैं, 0 rotational degrees of freedom होते हैं. For diatomic gas 3 translational, 2 rotational, मतलब 5 degrees of freedom. For polyatomic or triatomic gas 3 translational, 3 rotational, 6 degrees of freedom. Okay, then we come up with the molar specific heat of monoatomic gas. तो monoatomic gas के लिए हमने देखा था. So what is molar specific heat? Total energy monoatomic gas के लिए क्या होती है बोलो? What is the total energy in monoatomic gas? Cadet बोलो जल्दी. Yes, cadet. 3/2 kT. Yes, 3/2 total RT. energy in monoatomic gas. 3/2 RT. RT. Yes, sir. 3/2. Yes. And what is molar specific heat for monoatomic gas? 3/2 R. Yes. What is molar specific heat for monoatomic gas at constant pressure? 5/2 R. 5/2 R. 5/2 R. And what is gamma? 5/3. Yes. And for diatomic bolo, what is CV for diatomic gas? 7/2 R. CV for diatomic gas. 5/2 R. 5/2 R. 5/2. What is CP for diatomic gas? 7/2 R. Okay. And what is gamma for diatomic gas? 7/5. Yes. And what is CV for poly or triatomic gas? So 3 3/2 R. plus 3 plus vibrational FR. degrees of freedom plus R. And what is CP for triatomic gas? 4 plus of R. 4 plus Exactly. R. And what is adiabatic constant for 4 plus polyatomic? F. Yes, Or 4 3 plus F divided by 3 plus F. So hope I am very clear with the today's class. If still you have any doubt, if you want any revision, you just go to YouTube channel and you just see this video again and again. And still you have doubt, then again from tomorrow you are going to start the physical classes. तो आप क्लासरूम में कभी भी पूछ सकते हो. ठीक है बच्चों? कल से फिजिकल क्लासेस. Yes. So stop here.